Hi everyone, welcome back. Myself Divya Tamrikar. Today we are going to learn Chapter 6 Every Drop Counts. It is the second part of this chapter. In the first part, we knew about Gharsi Sar means a lake. King Gharsi of Jaisalmer got it made from 650 years ago with the help of their local peoples. And peoples are come here to celebrate their festivals, their personal occasions and program of music and dance, and also children come to study in the school on the ghat. This is the Gharsi Sar Ghat. It is made from the 9 lakes. One by one, step by step, it's joined 9 lakes. But nowadays Gharsi Sar is no more in use. वहाँ पे बहुत सारी बिल्डिंग्स बन गई है, बहुत सारी कॉलोनीज बन गई है, तो अब Gharsi Sar नहीं रहा. वहाँ पे वो 9 lakhs नहीं है. And already we learned about Al-Biruni, who are a traveler, and he came from Uzbekistan. And many more things we learn about in our previous video. So let's start from page number 54. Page number 54. Long ago, people used to make long journey with their caravans of animal and goods. People felt it was a good thing to give water to thirsty travelers. Thus, they built many beautiful stepwells. About a stepwell, we already learned in the first part of this chapter. Stepwells वो होते हैं जो कि कुएं की तरह होते हैं, पर उनमें बहुत सारे steps होते हैं. Here students, this is the step well. Look, it's look like a well, but a broad well, and here there are different types of steps who are go down and also step up. ऊपर और नीचे चढ़ने के लिए अलग अलग स्टेयर्स होते हैं. दैट्स वाई इन्हें स्टेप वेल कहते हैं. तो पहले के जो लोग होते थे वो ये मानते थे कि जब कोई बाहर से ट्रैवलिंग करता है अपने एनिमल्स और पूरी सामान के साथ, तो उन्हें पानी पिलाना या जिनको भी प्यास लगती है उन्हें पानी पिलाना बहुत अच्छा काम होता है. तो वो बहुत सुंदर सुंदर उनके लिए स्टेपवेल्स बना के रखते थे ताकि वो वहाँ आए और अपनी प्यास बुझा सके. Now we learn custom related to water. As you know, in our country, in India, we worship water as like a god. हम पानी की पूजा करते हैं. And many festivals are related to water. So in different states, people are worship water as like goddess. Like in Allahabad, Ganga river, which is also a holy river, means वो बहुत पवित्र नदी है, उसे भगवान की तरह माना जाता है. Ganga river, Brahmaputra, Kaveri, Krishna, and also we kept their name in our God's name. So in India, we worship water as like God. So here, even today, people get water from very old lakes, dharas, stepwell, and nolas. Many customs are and festivals are related to water. At some places, when filled up with rainwater, the people gather around the lake to celebrate. Here in this picture, see
The bride of Uttarakhand in this picture, after getting married, she has come to the village. She bow the spring or the pound. In cities, one can see an interesting form of this custom. The new bride worship the tap in her home. Can we even imagine life without water? No, we can't imagine our life without water. आज भी जो लोग होते हैं ये पुरानी नदी, पुराने स्टेप वेल्स, इन सब को भगवान की तरह पूजते हैं, क्योंकि बहुत सारे फेस्टिवल्स ऐसे होते हैं हमारे यहाँ जो कि वाटर से रिलेटेड होते हैं. एज लाइक अ होली, वी प्ले होली विद द वाटर्स. वी celebrate a new bride welcome with the water in उत्तराखंड. इस पिक्चर में देखिए, ये उत्तराखंड की पिक्चर है. इन दिस पिक्चर जब लड़कियां मैरिड होती हैं, जब उनकी शादी हो जाती है, तब वो उत्तराखंड में जो रिवर होता है, यहाँ जहाँ से भी उनके घर पानी आता है, वहाँ पर जाकर वो उनकी पूजा करती है. और कुछ जगहों में जब लेक्स जो होते हैं, जो झरने होते हैं, जो नदियाँ होती हैं, वो जब रेन वाटर से पूरी फिल हो जाती है, ऊपर तक पानी वहाँ भर जाता है, तो लोग वहाँ आकर उस नदी, लेक या पॉन्ड की पूजा करते हैं. ये कस्टम अब क्योंकि लोग जो हैं वो शहरों में रहने लगे हैं, तो अब वो अपने घर के नल की पूजा करते हैं जहाँ से पानी आता है. एंड एज यू नो स्टूडेंट्स, द वाटर इज़ play an important role in our life because we do not imagine our life without water. पानी के बिना हम अपनी लाइफ कभी भी इमेजिन नहीं कर सकते. Do you have some special pots for water at your place? Look, water is being filled in this beautiful copper pot. The shrinking yellow pot of brass is seen in the other picture. Many stone carvings are also made near the place of drinking water. Have you ever seen building near the place of water? Where? See, इस पिक्चर में देखिए कितना ब्यूटीफुल पॉट बनाया गया है सिर्फ पानी भरने के लिए. कुछ अलग ही तरीके से ये कॉपर और ब्रास के पॉट्स बनाए गए हैं. और इवन जहाँ से पानी आ रहा है वहाँ पे भी देखिए कितनी अच्छी आर्किटेक्चर की गई है. वहाँ के स्टोन को भी एक अलग सा टेक्सचर दिया गया है, एक अलग सा लुक दिया गया है ताकि वो बहुत सुंदर दिखे. तो पहले के जो लोग थे वो वाटर को क्योंकि भगवान की तरह मानते थे, तो वहाँ से जो निकलने का, जो पानी के निकलने का सोर्स होता था, उसको भी वो बहुत खूबसूरती से बना के रखते थे. नाउ हियर थिंक ओवर इट. इन 1986 there was no rain in Jodhpur and the surrounding areas. People remember the old and forgotten step wells, also known as Bauli or Bauli. They cleaned the step wells and more than 200 trucks of garbage was taken out of it. People of the area collected money. They thrust town got water from the step well. After a few years it ran well and again the step well was forgotten. 1986 में जब जोधपुर में कोई बारिश नहीं हुई थी, बहुत साल तक बारिश नहीं हुई थी, तो फिर वहाँ के लोगों को याद आया कि पुराने ज़माने में भी बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी जगह पर स्टेप वेल बनाया था. अब उन्होंने क्या किया, वो स्टेप वेल को वापस उन्होंने रिनोवेट किया. पूरे स्टेप वेल से जितने भी कचरे थे, ओवर 200 ट्रक्स ऑफ गार्बेज, मोर देन 200 ट्रक्स ऑफ गार्बेज उस स्टेप वेल में से निकला. उस सारे स्टेप वेल को उन्होंने क्लीन कराया, एक दूसरे से फंड्स इकट्ठे किए, उसको वापस कराया, वापस से रिनोवेट कराया
और जब रेन वाटर हुआ, बारिश हुई, तो वो स्टेप वेल वापस से भर गया। अब क्योंकि वहाँ के लोगों को पानी की ज़रूरत नहीं थी तो वो फिर से स्टेप वेल को भूल गए। तो इस तरीके से जब हम अपनी ही बनाई हुई एग्रीकल्चर आर्किटेक्चरी को, अपनी बनाई हुई ही पानी की व्यवस्था को भूल जाते हैं तो हमें ही मुसीबत का सामना करना पड़ता है। This is the picture in your page number 57 that this is how we get water. Nowadays there are different types of different types of चीज़ें, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड ऑल्सो, तरीका बोल सकते हैं। आजकल डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स हो चुके हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्स हो चुके हैं, वाटर सोर्स दैट वी गेट वाटर। इन द फर्स्ट पिक्चर यू सी a Jal Board water tanker come to our colony twice a day. We have to stand in a long queue to get water from the tanker. People at times have fight over water. Here in every picture students tell that how they get water in their homes. So here in the first picture a student tell us कि जहाँ वो कॉलोनी में रहता है वहाँ पे एक जल बोर्ड से टैंकर आता है। हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। एक इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट होता है, एक वाटर डिपार्टमेंट होता है, एक क्लीनिंग डिपार्टमेंट होता है। तो ये सारे लोग अपने डिस्ट्रिक्ट एरिया या विलेज का सारी चीज़ें देखते हैं। इलेक्ट्रिक वाले इलेक्ट्रिक देखते हैं, वाटर वाले वाटर देखते हैं। तो ये जो लड़का है, ये जो स्टूडेंट है, ये हमें ये बता रहा है कि वो जिस कॉलोनी में रहता है वहाँ का जो जल बोर्ड डिपार्टमेंट है वो दिन में 2 बार वाटर टैंकर भेजते हैं पानी के लिए, पानी भरने के लिए। उसके लिए बहुत लंबी लाइन लगती है और कभी कभी उसके लिए लड़ाई भी हो जाती है। And here a girls tell us we fill water from the well. The nearby well dried up a year ago. Now we have to walk further reach the other well. We are not allowed to take water from some of the well because of our caste. वो एक विलेज टाइप के एरिया में रहती है, वो पानी कुएं से भरती है। बहुत पहले जो कुआं वो यूज़ करते थे अब वो सूख चुका है, इस वजह से वो बहुत दूर तक जाकर वहाँ से पानी निकालते हैं और वो दूसरे के घर के कुओं से पानी नहीं निकालते क्योंकि वो दूसरे कास्ट के हो जाते हैं। दैट्स वाई वो कुआं यूज़ नहीं करते जो दूसरे लोग करते हैं। And here a little girl told us that we get water at home from half an hour. We fill this in the tank to use all day. Sometime it is dirty. इसके घर पे यहाँ से नल से पानी आता है और वो सिर्फ हाफ एन आवर के लिए आता है, सिर्फ आधे घंटे के लिए आता है। और वो ये बड़ा सा जो टैंक है इसको वो फिल कर लेते हैं। कभी कभी वो पानी बहुत ज़्यादा गंदा भी होता है। And here a boy told us there is a hand pump nearby but water that we get from it is salty. We have to buy water from drinking. वो हैंड पंप से पानी निकालते हैं बट उनका पानी सॉल्टी होता है और वो ड्रिंक करने के लिए, पीने के लिए पानी खरीद के पीते हैं। And here we get water from the canal itself. वहाँ पे एक कैनल मतलब नहर होती है, वहाँ से वो खुद ही जाके पानी निकालते हैं। And here a boy told us we have put a motor to the pump up the water from the borewell but there is no electricity. So what do we do? अब वो उनके यहाँ बोरवेल है, उन्होंने वो बोरवेल से पानी निकालने के लिए मोटर लगाया हुआ है लेकिन उनके यहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती तो अब वो कुछ नहीं कर सकते। Here we have put a pump direct in the Jal Board pipeline. Now we don't have any problem. ये थोड़े से रिच फैमिली के लग रहे हैं। सो इन्होंने सीधा सीधा पाइपलाइन से ही, जल बोर्ड की जो पाइपलाइन होती है वहाँ से इन्होंने एक मोटर फिक्स कर लिया है तो इनको अब कोई प्रॉब्लम नहीं होती।
And here a girls also told we get water from our taps all day long. उनके घर जो नल होता है वहाँ से पानी हमेशा आता रहता है. So student, as you see types of source where the children get the water from different sources. कुछ लोगों के यहाँ बहुत दिक्कतें हैं, कुछ लोगों के यहाँ ईजी वे है. जैसे इनके यहाँ हर दिन पानी आता है, इन्होंने जल बोर्ड से ही सीधे सीधे डायरेक्टली पाइपलाइन ले ली है. कुछ लोग बोरवेल में पंप लगाए हुए हैं लेकिन इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो वो क्या कर सकते हैं. सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्सेज वेयर दे गेट वाटर. व्हाट इज़ द सोर्स दैट यू गेट वाटर इन योर होम. आपके घर ऐसे कौन से सोर्स हैं जिनसे आपके घर में पानी आता है. पीने का पानी हो चाहे कपड़े धोने का हो, इसका आंसर आप नीचे कमेंट में देंगे मुझे. ओके, हियर यू सी अ बिल. इट इज़ अ टाइप ऑफ बिल. मे बी ये आपके यहाँ भी इस तरीके का बिल आता है. इट इज़ द वाटर बिल. जितना वाटर आप यूज़ करते हैं उसका ये बिल है, जो कि दिल्ली वाटर बोर्ड की तरफ से है. दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली सरकार पानी देती है और उसका हर एक हिसाब वो रखती है. तो इस तरीके की जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल आती है, सेम एज लाइक दैट दे आर गिविंग द वाटर बिल also, and you have to pay this bill on the jal board office. After that you get the water for your next month. So it can be done. There are some group that work hard to bring water to the people of different area. They ask the elder about the water arrangement in their times. They rebuild the old lakes and choras and also build new ones. Let us see how the groups called Tarun Bharat Sangh help Darki Mai. बहुत सारे ऐसे NGOs होते हैं, संघ होते हैं जो किसी ऐसे एरिया पर जाकर लोगों की मदद करते हैं जहां उनको जहाँ पे एक्चुअली लोगों को उनकी मदद चाहिए होती है. तो तरुण भारत संघ ने एक जगह पर गए जहाँ पे राजस्थान का वो एरिया है. वहाँ पे एक लेडी है जिनका नाम है डार्की माई. वो क्या करती है, चलिए let's take a look. This is the picture of Darki Mai. She is Darki Mai. She is an old lady. This is Darki Mai. She live in a village in the Alwar district of Rajasthan. The women of the village used to spend the entire day looking after their home and animal. Sometimes it took them all the night to pull water from the well for the animals. In the summer, when the wells dried up, they had to leave the village. Darki Mai heard about this group and asked for help. Together, the people from the group and the village decided to make a lake. The problem of food and water for animals is now less. People get more milk. They have start earning more. So डार्की माई बेसिकली जो है वो राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट में रहती है. वहाँ की जो वुमेन्स होती है उनका मोस्टली टाइम घर के हाउस होल्ड वर्क में ही चला जाता है. घर के सारे वर्क में चला जाता है. उनके घर को देखने में, उनके एनिमल्स को देखने में. कभी कभी वो सारी रात कुएं से पानी निकालती रहती है एनिमल्स के लिए. और समर के टाइम पे वो पूरा सूख जाता है तो बहुत सारे लोग गांव छोड़कर चले जाते हैं. सो डार्की माई को ये चीज़ बुरी लगी कि मेरे ही गांव के लोग अपने ही शहर और अपने ही गांव को छोड़कर क्यों जाएंगे. तो उन्होंने तरुण भारत संघ के नाम जो उन्होंने सुना था उन्होंने उनसे हेल्प की. एंड द पीपल फ्रॉम द ग्रुप they are decided to make a lake in the Alwar district of Rajasthan. Now after the making the lake, the problem of food and water for animals is now less. क्योंकि अब उनके डिस्ट्रिक्ट में ही वाटर की सुविधा हो गई थी तो अब वहाँ पे ये प्रॉब्लम कम हो गई. अब पीपल जो है वो एनिमल को अच्छा खाना दे सकते थे, अच्छा पानी दे सकते थे और इस वजह से वहाँ पे मिल्क जो कम होता था वो ज़्यादा होने लगा और वो अर्निंग ज़्यादा करने लगे.
So it is a little story of the Darky Mai who is popular for their work. She have to decided to make a lake for only village peoples who are going or who are had to leave the village in the summer's time when the well are dried up. So here students, your chapter is completed. Every drop काउंट मीन्स हर एक बूंद की कीमत होती है. आप अगर अपने घर पर ज़्यादा से ज़्यादा पानी का वेस्टेज करते हो तो वो करना बंद कीजिए. रेन वाटर को स्टोर करना शुरू कीजिए, बिकॉज़ कई स्टेट्स आज भी ऐसे हैं जहाँ पे पानी की दिक्कतें होती हैं, उनको पीने का पानी भी नहीं मिलता. दे डू नॉट हैव इनफ वाटर फॉर ड्रिंक. सो सेव वाटर, सेव लाइफ. यू डोंट वेस्ट अ सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर. So if you have any doubts regarding this chapter, you have to ask in the comment section. I will give you your answers, and thanks for watching my video, and please subscribe my channel. Have a good day.